balancing redox reaction. In single step, using oxidation number method. Let us take one question. H2S, hydrogen sulfide plus nitric acid is becoming free sulfur, nitric oxide, and H2O. So the first thing is that we have to assign their oxidation state and find out which element is undergoing oxidation and reduction. Here sulfur has -2 charge, but here sulfur has 0 charge. Here nitrogen has how many? We can find it out like this. Let this be X. For hydrogen we write +1, and for oxygen we write -2 into 3 should be equal to 0. So X here is -6 plus 5 -5, so X will be equal to +5. And here nitrogen is +2. So very clearly sulfur is undergoing oxidation, and how many electrons are exchanged here? 2 electrons. It is losing 2 electrons, so we'll write 2 electrons here. Okay, and what is happening here? Oxidation is happening. Nitrogen is undergoing reduction, and this reduction is taking place by how many electrons? The difference in the number of electrons here is 3 electrons. Now the atoms which is undergoing oxidation and reduction, their number is same, one sulfur, so don't worry. One nitrogen, so don't worry. Hydrogen and oxygen we balance by water. Now what we have to balance? We have to just balance the charge. To balance the charge, this has to be multiplied with 3. Number of electrons gained and lost should be equal to 0. So this part has to be multiplied with 3, and this part has to be multiplied with 2, isn't it? So we will just put 3 here. If I put 3 here, then I have to put 3 here also, because this is the 1/2 set reaction, okay, oxidation reaction. Now here 2 I have multiplied. If I multiply 2 here, then I have to multiply 2 here also and 2 here also. Now we know how to balance oxygen. Here how many oxygens are there? 6 oxygen atoms are there. And here how many oxygen atoms are there? 2 oxygen atoms are here and 1 here. So if I make it 4, then what will happen? 4 oxygen plus 2 oxygen will be equal to 6 oxygen, and here also 6 oxygen is there. No need to say that it is in acidic medium. It is acid only. So it is in acidic medium. So hydrogen we will balance now. This side how many hydrogen atoms we have? 6.
plus 2, 8 hydrogen, and this side how many hydrogens we have? 8 hydrogen. So now it is balanced. In single step. By which method? By oxidation number method. Now you will feel that I am doing it very easily, but it requires lots of practice. That is why I have given you one set of practice paper for this. So please do practice it. Okay, it will take time for developing the skill. It requires skill. As I am doing, you may not be able to do it in the first go. So please do practice it. Can we go for the next question? Have you understood this? Raise hand and tell me. Raise hand and tell me. Can I go to the next question? Some raise hands. Okay. One raise hand, two raise hand, three raise hand, four raise hand, five raise hand, six raise hand, seven raise hand. Okay. Now, those who have not raised hand, please pay attention. You will be able to understand it. Is somebody writing something? Okay, wishes. Okay, very good. All right. Now I'll go to the next question. I'm erasing it. Next question is question number 2. From where am I taking this question? I have sent you this worksheet in the WhatsApp. Okay. So as many I will be able to do, I will do. Rest you please try yourself. This chapter will be helpful in understanding electrochemistry in class 12 also, and redox titrations also. Okay. Now we will find out the oxidation state of sulfur here. Oxidation state of bromine here. Bromine is -1. Here bromine is 0. Here 2 bromine is there. Bromine atoms are there, means 1 bromine molecule is there. So I have to multiply 2 here. Now what is the oxidation state of sulfur here? Let oxidation state of sulfur be equal to X. Then for hydrogen +1, and for oxygen -2 into 4 should be equal to 0. So X, this will be -7 will be equal to 0. So X is equal to +7. Oh, it is 2 hydrogen atoms are there, so it will be 2. So if it is 2, then this will be 6. X for sulfur, and 2 hydrogen atoms are there, so 2 into +1 plus -2 into 4 should be equal to 0. So this will be equal to 2 plus X minus 8 is equal to 0. So X minus 6 is equal to 0. So X is equal to +6. So here oxidation number of sulfur is +6. And here oxidation number of sulfur is +4. How? Because oxygen is -2 into 2. Okay. All right. Now, how many electrons are left? How many electrons are lost? कितना इलेक्ट्रॉन जो है Br माइनस ने छोड़ दिया, तब जाके ये ऑक्सीडाइज होके Br2 बना. एक ब्रोमीन एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा, 2 ब्रोमीन मिलके 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ा. यहां पे सल्फर का करेंगे तो कैसे होगा? सल्फर ने कितना इलेक्ट्रॉन लिया?
सल्फर ने लिया 2 इलेक्ट्रॉन। अब दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन मुझे सेम सेम दिख रहा है, ठीक है। सो द गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज सेम इन बोथ द साइड्स, मल्टीप्लाई इट बाय 2 both side and again cancel it, so rather you can consider that gain and loss of electron is 0. There is no gain and loss of electron. नेक्स्ट, अगर यहाँ पे ऐसा 3 हो जाता तो इसको 3 से मल्टीप्लाई करते, इसको 2 से मल्टीप्लाई करते, लेकिन यहाँ पे 2 से 2 है, तो कोई मतलब नहीं कि इसको भी 2 से मल्टीप्लाई करे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करे, इसको 2 से मल्टीप्लाई करे, फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई करे, और फिर पूरे को 2 से डिवाइड करे, कोई मतलब नहीं है। तो पहले से ही हमने इस 2 को इस 2 से कैंसिल कर दिया, मतलब गेन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑलरेडी सेम। गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन on its own, so we don't have to cross multiply, ठीक है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ी। अब क्या बैलेंस करेंगे? सल्फर बैलेंस्ड है, ऑक्सीजन बैलेंस करेंगे। यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन कर दे, तो 4 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन प्लस 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, यहाँ 4 ऑक्सीजन। हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हाइड्रोजन प्लस 2 हाइड्रोजन इक्वल टू 4 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 4 हाइड्रोजन, तो इट इज बैलेंस्ड। दिस रिएक्शन इज नाउ बैलेंस्ड इन सिंगल स्टेप। By which method? By oxidation number method. ये समझ में आ गया तो हैंड रेस करो, so we'll go for next question. अगर ये समझ में आ गया तो हैंड रेस कर देना। 2 participants, 4, 5, 6, 7, चलो ठीक है, good good good. I am erasing it now again. Now I'll take question number 3. H2SO4 plus HBr SO2 बना, ये तो कर लिया शायद ना, ये तो हो गया दूसरा क्वेश्चन। H2SO4 प्लस HI बना H2S प्लस आयोडीन मॉलिक्यूल और H2O। किसी भी मॉलिक्यूल में चार्ज 0 होता है, इसमें सल्फर में -2 है, इसमें सल्फर में कितना निकाला था हमने पहले? +6 निकाला था, इतना तो याद रहेगा, ये -1 है। तो इसको बैलेंस करने के लिए हम पहले यहाँ पे 2 डाल देंगे, और -1 से 0 बनने के लिए 2 आयोडीन को कितने इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करना पड़ा? 2 इलेक्ट्रॉन्स के त्याग करने पड़े, और सल्फर यहाँ पे है -2 के स्टेट में, और यहाँ पे है +6 के स्टेट में, यानी कि अगर इसमें हम 6 इलेक्ट्रॉन डालें तो 0 होता, तो 2 और इलेक्ट्रॉन, यानी कि इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन्स डाल देंगे तो जाके ये सल्फर -2- बनेगा। व्हाट आई मीन टू से इज, ये सिंपल मैथमेटिक्स है, ठीक है। सल्फर के ऊपर है +6, इसमें हम 8 इलेक्ट्रॉन डालेंगे, मतलब 8 नेगेटिव चार्ज, तब तो जाके ये बनेगा सल्फर -2, इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 8 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पे मामला बराबरी का नहीं है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस्ट एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन्ड आर डिफरेंट।
इसलिए हमें इसको एक साइमल्टेनियस इक्वेशन की तरह ट्रीट करना होगा। तो हम सिंप्लीफाई कर देते हैं इसको पहले, इस 2 को इस 8 से कैंसिल कर देते हैं, तो ये हो गया 4 इलेक्ट्रॉन्स। बाद में भी यही करना पड़ता, मतलब एक को 2 से मल्टीप्लाई करते, फिर एक को 4 को मल्टीप्लाई करते और फिर 2 से डिवाइड करते, तो उससे पहले हम इसको डिवाइड ही कर दिया 4 से। अब डिवाइड करने के बाद इस 4 को हम कहां मल्टीप्लाई करेंगे, इस 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इस वाले पार्ट के साथ, इस वाले पार्ट के साथ, तो ये हो जाएगा 8Hi और ये हो जाएगा 4I2। अब इस रिएक्शन को एक बार दोबारा लिख दे अच्छे से। इसको जब एग्जाम में करना तो एक बार पेंसिल से करना, उसके बाद पेन चलाना, ठीक है? और नहीं तो मेरी तरह दोबारा भी लिख सकते हो, देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट। H2O देखते हैं कितना डालना है अभी। तो ऑक्सीजन कितना आ गया यहाँ पे, ऑक्सीजन है 4, तो हमें 4 ऑक्सीजन चाहिए, तो हम 4 वाटर डालेंगे, 4 H2O, तो हो गया 4 ऑक्सीजन। अब हाइड्रोजन देखते हैं कितना है यहाँ पे है 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे है 8 हाइड्रोजन, तो 8 + 2 10 हाइड्रोजन हो गए, और यहाँ पे 8 हाइड्रोजन और यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे भी 10 हाइड्रोजन हो गए, यहाँ पे 8 आयोडीन और यहाँ पे भी 4 ट्वाइस आर 8 आयोडीन, तो हो गया ये बैलेंस, है ना? सिंगल स्टेप में ये भी बैलेंस हो गया। इसको रीराइट इसलिए किया थोड़ा देखने में अच्छा लगेगा, अदरवाइज सिंगल स्टेप में ही तो हुआ, है ना? सो बैलेंस्ड इन सिंगल स्टेप। बाय विच मेथड? बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। अगर ये समझ में आ गया तो हैंड रेज करो, सो आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। बस 5 लोग ही, बाकी जो नहीं हैंड रेज कर रहे हैं ना, वो मुझे डाउट व्हाट्सएप करना कि प्रॉब्लम कहाँ हो रही है, ठीक है? तो उनके लिए मैं फिर कोई अलग टाइम दे दूंगा फिर, है ना? ऑलराइट, इसको क्लियर कर देते हैं। नाउ विल डू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, N2O plus H2 is becoming H2O plus NH3। यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा? नाइट्रोजन का ऑक्सीजन स्टेट x मान लिया, तो x -2 ऑक्सीजन के लिए तो इक्वल टू 0, सो 2x इज इक्वल टू 2, सो x इज इक्वल टू +1। तो एक नाइट्रोजन का +1 है और यहाँ पे एक नाइट्रोजन का -3 है। और क्या हो रहा है, यहाँ पे हाइड्रोजन 0 है और यहाँ पे हाइड्रोजन क्या हो रहा है, +1 × 2 हो रहा है। अब ये N2 है और यहाँ पे सिर्फ N है, तो इसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे पहले। अब दोनों तरफ नाइट्रोजन सेम हो गए। अब 2 × -3 मतलब कितने नेगेटिव चार्ज हुए? 6 नेगेटिव चार्ज।
और यहाँ पे कितने पॉजिटिव चार्ज हो गए? +1 इंटू 2, 2 है ना, इक्वल टू +2 पॉजिटिव चार्ज। तो +2 से -6, +2 से -6 जाने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे? कितने इलेक्ट्रॉन लगेंगे +2 से -6 तक जाने के लिए? कितने इलेक्ट्रॉन्स लगेंगे? अगर 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो 0 होगा, 2 इलेक्ट्रॉन्स देंगे तो 0 होगा, ठीक है। और फिर दोबारा 6 इलेक्ट्रॉन्स और देने होंगे। तो मुझे चैट में ही बताया किसी ने अभी, तो 8 इलेक्ट्रॉन्स देने होंगे। तो 8 इलेक्ट्रॉन्स दे देते हैं इसको। और यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन्स देने होंगे? ये इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है बेसिकली, है ना। ये +2 है और ये 0 है, तो ये +2 इलेक्ट्रॉन। ये -2 इलेक्ट्रॉन है और ये +8 इलेक्ट्रॉन है। अब इसको दो तरह से कर सकते हैं हम। एक तरीका ये हुआ कि इसे और इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें और इसे और इसे 8 से मल्टीप्लाई कर दें। दूसरा तरीका ये है कि हम पहले इसको नलीफाई करके कैंसिल कर दें। तो 2 4s आर 8। तो अब ये जो 2 है ये तो 1 हो गया, 1 को इसमें मल्टीप्लाई करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे इसमें और इसमें, ठीक है। मतलब इसकी टोपी इसके सर पहनाएंगे। तो 4 यहां पे लिखा, तो 4 हमें यहां पे भी लिखना होगा। अब ऑक्सीजन देखते हैं बैलेंस्ड हुआ कि नहीं। यहाँ पे एक ऑक्सीजन है और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है। और ये किस प्रकार का मीडियम है? एसिडिक मीडियम है कि बेसिक मीडियम है? ये एसिडिक मीडियम होगा या बेसिक मीडियम होगा? नॉन मेटेलिक ऑक्साइड जो होता है वो एसिडिक होता है, क्योंकि वाटर के प्रेजेंस में ये HNO3 बनाता है, एसिड बनाता है। तो इसको एसिडिक मीडियम मान लेंगे। यद्यपि बाद में एक वीक बेस अमोनिया बन रहा है, लेकिन ये बाद में बन रहा है। पहले जो मीडियम है वो मीडियम कैसा है? एसिडिक है। और H2 क्या है? न्यूट्रल है। इट इज एसिडिक और ये न्यूट्रल, और ये है वीक बेस, ठीक है। तो स्टार्टिंग में मीडियम एसिडिक है। तो पहले ऑक्सीजन बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 4 ऑक्सीजन है, तो हम यहाँ पे एक ऑक्सीजन पहले से है, तो यहाँ पे हम डाल देंगे 3H2O। अब 3 ऑक्सीजन प्लस 1 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, और यहाँ पे 4 ऑक्सीजन यहाँ पे। अब हाइड्रोजन देखते हैं कितना हो गया। 6 हाइड्रोजन प्लस 8 हाइड्रोजन, 14 हाइड्रोजन। और यहाँ पे 8 हाइड्रोजन प्लस 6 हाइड्रोजन, 14 हाइड्रोजन। तो ये बैलेंस हो गया, ठीक है। ये रिएक्शन बैलेंस्ड है। एक काम और भी कर सकते हैं हम, इस 3H2O को लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड ले जाके कैंसिल भी कर सकते हैं। सो ओनली 1H2O विल बी रिमेनिंग। ऐसा करके यहाँ पे एक बार फ्रेशली लिख दे, N2O प्लस
4H2, ये 4H2O माइनस 3H2O लेफ्ट हैंड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो विल रिमेन ओनली 1H2 प्लस 2NH3. तो ये हो गया बैलेंस्ड केमिकल रिएक्शन. ये क्वेश्चन अगर समझ में आ गया तो हैंड रेज करो, देन आई विल गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सेवन. बाकी के जो बच्चे हैं वो भी थोड़ा ध्यान दो तो आ जाएगा, ठीक है. इतने को ही प्रैक्टिस करना मेरे साथ साथ बार बार. जो मैं बना रहा हूँ उसी को करना. ये रिकॉर्डिंग मोड में है, फिर इसको अपलोड कर दूंगा मैं, तो यू कैन फॉलो इट ऑल्सो. नेक्स्ट इज again clear the drawing. Next question. 5 potassium plus KNO3 N2 plus K2O. Okay. Here we will find out the oxidation number of +1 plus X plus -6 equal to 0. So X minus 5 is equal to 0. So X is equal to +5. ये हो गया भाई +5 और ये हो गया 0. यहाँ पे पोटेशियम मेटालिक फॉर्म में है, एलिमेंटल फॉर्म में है. एलिमेंटल फॉर्म और मॉलिक्यूलर फॉर्म हैज ऑक्सीडेशन नंबर इक्वल टू 0. और यहाँ पे पोटेशियम क्या बन रहा है, -2 है ये, तो ये हो जाएगा. इस केस में थोड़ा डिफरेंस होता है ना, पोटेशियम के केस में ये थोड़ा डिफरेंट है. इसमें पोटेशियम K2O के केस में हम यहाँ पे इसको -1 लेते हैं, ठीक है. What happens is K is 1 plus and O is -2. So it comes here and comes here. No, it is okay. We will take it as -2. So this will be +1. Okay. It will be -2. This will be +1 into 2. यहाँ पे जो ये पोटेशियम है, इसको देख के कंफ्यूज नहीं होना है. ये पोटेशियम जो है ना ये ऑक्सीडाइज हो रहा है ना रिड्यूस हो रहा है. यहाँ पे जो रिएक्शन हो रहा है वो हो रहा है K के बीच में और NO3 माइनस आयन के बीच में हो रहा है. तो इस आयन के साथ ये K+ एसोसिएटेड है. इस K+ का कुछ नहीं हो रहा.
nothing is happening with this K plus. ठीक है, तो we will take this ionic equation if you want, otherwise we can take here also. ionic equation लेंगे तो confusion नहीं होगा, ये confuse नहीं करेगा ये वाला part. तो ionic equation लेते हैं और ये N2 plus K2, ये हो गया +5, ये हो गया 0, यानी कि इसमें हमें देना पड़ रहा है 5 इलेक्ट्रॉन। ये 2 है तो इसको भी 2 कर दिया, तो ये 0 था और ये बना +2, यानी कि it is taking 2 electron, it is leaving 5 electron. Now it is taking 5 electron and it is gaining 2 electron, opposite direction happened, and it is also gaining 5 electron. Now 5 cannot be made 2, 2 cannot be made 5. So what I will do is I will multiply 2 with this part, and 5 with this part and this part. तो इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये 5 से, और इसको 5 से करेंगे तो ये हो जाएगा 10, और इसको 2 से कर देंगे. Okay, one mistake we have done here. Here it is N2, so we have to make it twice over here. Now 10 electrons we have to give. Then we will cancel it. It will become 5 electron, and this 5 we will multiply with this. We will multiply this with 5 and multiply this with 5. So this will become now 10K plus 2NO3 minus is becoming N2 plus 5K2O. Oxygen we will see. Here how many oxygen atoms are there? 6, and here 5. So we'll give 1 H2O this side and 2 H plus this side. In this way we can balance it. अब यहाँ पे NO3 के पास K plus लिख देते हैं, कोई बात नहीं, K plus लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है. So what you can do is you can solve rest of the questions. Okay, there are a number of questions given in that sheet. So there are around 30 questions given, and after that solutions are also given. Okay, you will see with the help of pencil solutions are also done. So practice it yourself and develop mastery over it. Okay, then we will see the rest part of the chapter in our next class. Thank you.